क्या हुआ है? इंटरनेट चल रहा है तो व्हाट्सएप पर खोलो। Ever come across, I introduce you to Sunil Senani sir, our speaker for the day. He is a very simple, energetic and a dynamic person. Sir has been a valedictorian. As a school mentor, he believes in raising level of all students on a continuous basis. They are made to the environment. He believes that every child is born with immense potential. We as catalysts have to shape up that immense untapped potential. Has structured his daughters so well that they are independently leading around. Sidhya ma'am and Simran ma'am emulate all of his principles of life in them. Sir has been conducting parenting workshops at other WITS institutions as well. Sir will guide parents today in dealing with growing children, their demands, needs, desires, dreams, and so many other aspects which are all made equally important by the child and to build a better bond between the parent and child. Dear parents, please welcome sir with a huge round of applause. I would now request sir to please accept the moment of love. We are so grateful to have you with us, sir. As William Ross Wallace, entitled What Rules the World, he said that the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world, the hands of a mother. Mother is a symbol of love and care. She is our first teacher, friend and inspiration. Today, I take immense pleasure in introducing you to the most beautiful, strong, loving, caring and wonderful mother, Mrs. Shruti Senani. Although mothers are incomparable as they are special in their own way, there is something special about Shruti ma'am. With two daughters whom she has nurtured so well that it is reflected in them today, the most important thing that she taught her daughters was to have confidence and belief in themselves. The key point to note here is the simplicity that she instilled in her daughters, because of which they are able to contribute to the well-being of society. Dear parents, please welcome ma'am with a huge round of applause. I would now request we are so grateful to have you here, ma'am. Of gratitude and respect. Being a perfect daughter is one way of providing that. Cynthia ma'am, a great example of perfect upbringing, a well-read and cultivated daughter. Not only a great daughter for her parents, but also an excellent human being, respecting values and making meaningful contributions to the people's life around. As an individual, she has made her own choices and taken her own independent decisions, which she and everyone is proud of today. It is because of her thought that the WIT school took its form. She believes all human beings can live a much more powerful life than what they are living at any point of time by aligning their paradigms with reality. She always keeps on
caretaker ideology, which helps making the students of the Wits family empowered and responsible. Also, she taught us all to believe in ourselves and make a difference. We are proud to flourish with her. Sidhya ma'am is an alumnus of Sri Ram College of Commerce, Delhi and Syed Business School, University of Oxford, UK. A woman of great virtue and simplicity. I feel elated to introduce her to everyone. Ma'am is deeply passionate and committed to social sector since early age. She has spent her time since college years in empowering marginalized sections of society for their sustained socio-emotional and economical development. Her passion took a turn in 2016, wherein she chose to work with children to shape their lives. Dear parents, please welcome ma'am with a huge round of applause. I will now request ma'am to please accept the memento of love. Program to make it successful. I would now request sir to address the gathering with his wisdom of knowledge. Kindly welcome sir with a huge round of applause. Respected heads of this campus and principal, teachers and all my dear parents. सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, पेरेंट्स होने की बधाई, क्योंकि बहुत टाइम से आपको पता है हम सुन रहे हैं यूरोप में लोग यहाँ बच्चे ही पैदा कर रहे हैं. द पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज गॉन नेगेटिव. जापान में लोग परेशान हैं, एजिंग लोग बढ़ रहे हैं और पता नहीं क्या है. आई कांट फैथम द रीज़न वाई पीपल आर नॉट प्रोड्यूसिंग किड्स. मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये कह सकता हूँ, अब मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, पूरी उम्र नहीं बताऊँगा, लेकिन सीनियर सिटीजन बनने में थोड़ा टाइम है. बट एज आई हैव लिव्ड दिस जर्नी ऑफ लाइफ, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ और बहुत फील होकर कह सकता हूँ कि द बेस्ट पार्ट of my life has been when I spent time with my children. जो महसूस मैंने अपने बच्चों के साथ किया है बचपन से लेकर आज तक, मुझे लगता है दुनिया का कोई भी दूसरा अनुभव ऐसा नहीं है जो दूर दूर तक उसको मैच कर सके. आप जीवन में मेहनत करते हैं, आपको बहुत सारे रिवार्ड्स मिलते हैं, बहुत सारे रिकग्निशन मिलते हैं, आप यहाँ से वहाँ दुनिया घूमते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो इम्पैक्ट या जो एक खुशी या जो एक सेटिस्फेक्शन या जो जीवन के अनुभव आपको बच्चों के साथ मिलते हैं, वो मुझे लगता नहीं कि कोई दूसरी चीज़ उसको कहीं भी दूर तक भी टच कर सकती है. तो इसलिए मैं आप सबको बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पेरेंट्स, यू हैव चोजन टू बी पेरेंट्स और आपके बच्चे हैं. अब जिस सब्जेक्ट के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत ही फॉर मी इट इज़ अ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. मुझे बहुत अच्छा लगता है सब्जेक्ट पे बात करना, और इसकी अवेयरनेस बहुत कम है. सब पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई है. सब बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये अनफॉर्चुनेट है कि बहुत पेरेंट्स को पता ही नहीं कि हमारे बच्चे के लिए अच्छा करने का मतलब क्या है. वो बच्चे का शारीरिक तौर पे तो बहुत अच्छा ख्याल कर लेते हैं, उसकी तबीयत खराब होती है तो उसको तुरंत दवाई दे देंगे, खाने पीने के टाइम में उसको जो ज़रूरत है उसको दे देंगे, उसको अच्छा कपड़ा पहनाएंगे, सब कुछ करेंगे. मगर जो दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है, वो आपका जो ब्रेन है. आपका ब्रेन कैसे काम करता है, आपके थॉट्स क्या हैं, आपकी हैबिट्स क्या है, आपके विचार क्या है, आपकी सोच कैसे बनती है.
अनफॉर्चुनेटली उस पर उतना मेहनत इसलिए नहीं करते कि उनको पता नहीं, और समहाउ हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में आया नहीं है। मुझे पर्सनली लगता है कि सारे पेरेंट्स को पहले पेरेंटिंग सीखनी चाहिए। बच्चा पैदा करने के पहले उनको पेरेंटिंग सीखनी चाहिए, या तुरंत पैदा करने के बाद सीखनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने आज ये वर्कशॉप सोचा है कि आप लोगों के लिए किया जाए। और मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है कि अगले 1-1.5 घंटे में यहाँ जो होने वाला है उसको बहुत ध्यान से सुनें। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखने जाते हैं तो सबसे पहले ये जो हमारे अंदर पहले से कुछ चल रहा है ना, उसको निकाल दीजिए अगले 1-1.5 घंटे के लिए, दिमाग को खाली कर दीजिए। अगर खिचखिच चल रही है ना, किचन की या बाइक की या दुकान की या जॉब की या बॉस की, थोड़ी देर के लिए उसको भुला दो यार, क्योंकि कुछ नया आप सीखने वाले हैं। और ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो आप सीखने वाले हो ना, अगर 10-20% भी आपने उसमें से सीख लिया और उस 10-20% का आधा भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तो ना सिर्फ आप बहुत अच्छे पेरेंट बन जाएंगे, आपकी खुद की ज़िंदगी बहुत सुधर जाएगी इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी बिगड़ी हुई है। जो आपने इंट्रोडक्शन में सुना, जो सीख जाए, हम कहते हैं हम जिस लेवल पे है उस लेवल से बहुत अच्छा सीख सकते हैं। ऐसा थोड़ी कोई परफेक्ट हो गया है, हम जहाँ उससे आगे सीख सकते हैं ना। अगर किसी को कुछ भी लगे तो बिल्कुल हम लोग हिंदी में बात कर सकते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग, है ना। अंग्रेजी इसलिए सीख रहे हैं कि अंग्रेजी जरूरी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बट वी कैन टॉक इन हिंदी ऑल्सो, ठीक है। तो रूल्स ऑफ द गेम है कि हम सब बात करेंगे और जो मन में आ रहा है उसको तुरंत पूछेंगे। मुझसे पूछना, मुझसे पूछिएगा, मेरी वाइफ से किसी को पूछना है उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने कैसे कैसे चैलेंजेस फेस किए, या हमारी डॉटर से आपको कुछ पूछना है तो उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। दीज आर द रूल्स ऑफ द गेम दैट वी विल कीप इट इंटरेक्टिव। बात करते करते हम लोग ये सेशन करेंगे, ऐसा ना हो कि हम सत्संग करके चले गए और हमें कुछ पता ही नहीं चला, है ना। तो हमें पता तब चलेगा कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे जब आप उनसे बात करते रहेंगे। तो शैल वी स्टार्ट? ठीक, चलिए पहली स्लाइड फुल कर दी। एक डिबेट ये जो बहुत टाइम से चली आ रही है, हम लोगों ने बहुत बार सुना यार, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो क्लीन स्लेट होता है, वो कौन सी मिट्टी होती है, कुम्हार की जैसे, उसको हम चाहे जो शेप दे सकते हैं। एक डिबेट ये चलती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के अंदर कुछ नहीं है, और जैसा एनवायरनमेंट, जैसी अपब्रिंगिंग हम उसको दे, जैसा हम चाहें वैसा हम उसको बना सकते हैं। जैसे मिट्टी को जो शेप एक कुम्हार देना चाहता है वो दे देता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न ए जीनियस। हर बच्चा जब पैदा होता है तो जीनियस होता है, लेकिन बहुत जल्दी हम उसके जीनियसपन को खत्म करते जाते हैं। कौन खत्म करता जाता है? बच्चा खुद नहीं। ये पेरेंट बहुत इनको कहने में कोई झिझक नहीं है। पेरेंट्स एंड द एनवायरमेंट, पेरेंट्स, फैमिली, अर्ली एजुकेशन, स्कूल, ये सारे मिलके उसका जीनियसपन जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनका भी खत्म किया गया था, ठीक है। तो एक थॉट ये है, हमारी फिलॉसफी में अगर आपने पढ़ा हो, हमारे मिशन में पढ़ा हो, हमारे विजन में पढ़ा हो, जब इसको हम लोग बना रहे थे, सिटिया बना रही थी, हम दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे थे, तो पहली लाइन इज एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद नो लिमिट्स। पैदा होते वक्त कोई लिमिट नहीं है, फिर लिमिट डालना कौन चालू करता है? हम। तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो धीरे धीरे हम उसको ये बताना शुरू करते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो ये सब चीजें, ज्यादा ये बताते हैं। तो एक थ्योरी ये है। एक दूसरी थ्योरी इस पे बिलीव नहीं करती। वो थ्योरी कहती है हर व्यक्ति पैदा हुआ है, उसके जीन्स में कुछ है। हमारे जैसे उसमें कहते हैं ना, हमारे वेद पुराणों में, प्रारब्ध, पिछले जन्म के कर्म लेके पैदा हुए हो, अब जो पहले लिखा है तुम्हारा वही होने वाला भी है। एक ये भी है कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद ए बेसिक नेचर। हम जब विप्रो में काम करते थे तो हमारे चेयरमैन प्रेम जी थे। प्रेम जी का नाम सबने सुना होगा, इस समय इंडिया के इतने बड़े दानवीर हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। वो कहते थे यार कि हर बच्चा एक अलग बीज है, वो अपने नेचर से पैदा हुआ है, उसको उसका बेसिक कैरेक्टर कोई नहीं चेंज कर सकता। वो कहता है जैसे अगर सेब का बीज है तो उससे क्या फल निकलेगा जब बड़ा होगा पेड़, तो सेब नहीं निकलेगा ना, उसमें से आम नहीं निकल सकता।
तो उनका कहना पड़ता था कि हर बच्चा एक यूनिक सीड है और पेरेंट्स का स्कूल का काम सिर्फ उसको पानी, खाद, सुरक्षा देना है। जो उसका नेचर है वो वही बनेगा। लेकिन अगर आपने सेब के पेड़ को अगर अमरूद बनाने का प्रयास किया तो क्या होगा भाई? क्या होगा? भगवान जाने कौन सा फ्रूट पैदा होगा, उसको कौन खाएगा, है ना? अजीब सा नहीं हो जाएगा? हो सकता है द ट्री itself can die or it cannot develop to its full potential। तो एक थ्योरी ये है जो कहती है कि भैया जो वो है वो वही बनेगा, और एक थ्योरी क्या कहती है? सब कुछ हमारे हाथ में, एनवायरमेंट के हाथ में है। क्या आप लोग क्या लगता है? फ्रैंकली बताइए। जी, दोनों सही है। दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिए ना। अगर आप ये मान ले सब से जीन्स में तो लेगा, फिर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। और अगर आप ये मान ले हम खुद कुछ कर सकते हैं तो लगने लगेगा हमको क्या? आप क्या कह रहे हैं? न्यूट्रल है आप भाई साहब क्या कह रहे हैं? दोनों चीजें हैं। मुझे भी लगता है सबसे सही तरीका है कदम कदम पे हम फैसला करते हैं, ये करें कि वो करें, है ना? शेक्सपियर ने बोला ना, टू बी और नॉट टू बी। हर बार जीवन में लगता है चॉइसेस रहती, क्या करें। तो इन्हें बड़ी अच्छी बात कही कि इनकी डॉटर जो है वो सही चॉइसेस। चलिए, बहुत आप सब लोग बहुत अच्छे समझदार पेरेंट्स हैं, कम से कम ये जवाब देने में। अब आगे का जवाब देने में आधे लोगों की मुझे लगता है सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। ये तो वही है जो आपने कहा है, उसी को हमने शॉर्ट में लिख दिया है। वो हैप्पी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, फुलफिलिंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, लाइफ की मीनिंग होनी चाहिए, लाइफ का पर्पस होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग, जितनी आपने अच्छी अच्छी बातें कही उन सब का सार हमने ये लिख दिया है कि दिस इज व्हाट ऑल पेरेंट्स वेयर देयर चिल्ड्रन टू बी व्हेन दे ग्रो अप, राइट? चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब ये आपसे बच्चा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पढ़िए ध्यान से। ये जो क्वालिटीज आप अपने बच्चों में चाहते हैं, ये उनमें अभी से आए डेवलप हो, इसके लिए आप कितना समय अपने डेली जीवन में आज बिता रहे हैं? ये क्वालिटीज डेवलप करने के लिए जिनकी बात हुई है कि वो कॉन्फिडेंट हो, अपनी चॉइसेस अच्छी करे, इंडिपेंडेंट हो, रिलेशन अच्छे बनाए, खुश हो, सक्सेसफुल हो, इन सब के लिए आज की तारीख में स्कूल में एडमिशन कराने के अलावा आप क्या कर रहे हैं बताइए? हमने दिनचर्या में से कितना टाइम कॉन्शियसली सोच के हम बिता रहे हैं जिससे बच्चे में ये क्वालिटीज डेवलप हो? एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर? यस? इनको भी माइक दे सकते हैं क्या? मैं कोशिश करती हूँ सर कि वो टाइम उनके लिए मैं दूँ। सपोज मैं चाहती हूँ कि वो नीडर बने, खुश वगैरह साथ में, क्योंकि सर आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा है कि थोड़ा नीडर होना बेटियों के लिए ज़रूरी है। उनके मैंने कराटे क्लास लगाई। अब जहाँ सर मैंने एकेडमी में लगवाया है वहाँ पे सर पेजिक सिलाट के लिए उन्हें ट्राई करा, और सर आज उनका स्टेट लेवल टूर्नामेंट है। वेरी गुड। ये चाहती है कि बच्चियाँ ब्रेव बने, तो उसके लिए उन्होंने उनको कराटे क्लासेस ज्वाइन कराई हैं, सो दैट वो निडर आगे चल के दे कैन टेक केयर ऑफ देयर सेफ्टी। एनीबॉडी एल्स? और क्या क्या कर रहा है? कुछ क्वालिटीज अपने बच्चों में डेवलप करने के लिए जिन क्वालिटीज की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो, मैं जानता था कि बोलती बंद हो जाएगी। जब मैं पूछ रहा था क्या बनाना है तो सबकी बोलती बड़ी तेजी से फूट रही थी, है? एक बात ध्यान से सुनो, वेरी सीरियस बात। ये बात कोई मैं अपने अनुभव से तो कह ही रहा हूं, लेकिन ये रिसर्च बेस्ड बात है और पूरी दुनिया में रिसर्च हुआ है। जो इम्पैक्ट बच्चे में माँ बाप का होता है वो इम्पैक्ट सारी दुनिया में मिला के समाज के 50 लोग बच्चों को कहे तुम अच्छे हो, लेकिन अगर उसके माँ बाप उसको कहे तुम अच्छे नहीं हो, तो उसकी साइकी में क्या किसका इम्पैक्ट होगा? जो माँ बाप है।
आपका रोल आपके बच्चे के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपके थ्रू वो इस दुनिया में आया है, यू आर द सोर्स। और जो इनिशियल जब उसका दिमाग डेवलप होता है, जो उसकी भावनाएं डेवलप होती हैं, उसकी थॉट प्रोसेस डेवलप होती है, सबसे ज्यादा वो माँ बाप को ऑब्जर्व करता है और सबसे ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट माँ बाप है। दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को आपने सुना है कभी, क्या तुम्हारी सक्सेस का क्या है, उसका राज क्या है? सबसे पहले क्या बोलता है? विदाउट फेल। मैं आपसे बता रहा हूं, आप 100 लोगों की सुन लीजिए, 1000 लोगों की जीवनी सुन लीजिए, सबसे पहले वो अपने माँ बाप को क्रेडिट देते हैं, फिर टीचर को क्रेडिट देते हैं, फिर दूसरों को क्रेडिट देते हैं। माँ बाप का रोल इतना अहम है, इतना अहम है। आप उससे क्या बात करते हैं, आप उससे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, इसका जो असर बच्चे पे होता है उसका दुनिया में किसी चीज का असर नहीं। इट इज दैट इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आज बहुत ध्यान से आपको सुनना है। और ये जो अभी आपको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये वाकई में आप बहुत कम कर रहे हैं। जो क्वालिटीज हम अपने बच्चे में डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए हम रियली क्या कर रहे हैं आज? अगर आप ये अपनी एनालिसिस करेंगे, अपने को एग्जामिन करोगे, अपनी परीक्षा करोगे ना, तो आप पाओगे कि आप बहुत कम कर रहे हैं। क्योंकि आप अपने में बिजी हैं, आपके अपने जिंदगी के जुझारूपन से जुटे हुए हैं, चल रहा है, और आपको लगता है मेरा बच्चा अपने आप कहीं से ही सीखे, कोई जादू हो जाए, कोई टीचर सिखा दे, स्कूल सिखा दे। स्कूल टीचर डेफिनेटली सिखाएंगे, लेकिन हमने क्या कहा, उनका नंबर पेरेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर पेरेंट्स। आप लोगों के बच्चे 6वीं से 8वीं में हैं, चलिए, तो कुछ तो खैर आपका टाइम निकल गया। यहां तक आते आते भी बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन वी आर नेवर लेट। जब जागो, आप मान सकते हो टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। आज मेरी पेरेंटिंग जीवन की नई शुरुआत मैं आज कर सकता हूं, यहां से जब आप चाहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, जब हम पेरेंट बनते हैं तो ज्यादातर पेरेंट्स से मैंने बात की है, वो बड़े चैलेंजेस फेस करते हैं। क्या चैलेंज फेस करते हैं बताओ, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए अपने बच्चों को पालते हुए? सर मेरा सबसे बड़ा चैलेंज, मैं हर चीज़ से डील कर लेती हूँ, बट मेरी छोटी बेटी सर 5 साल की है, उससे अभी कुछ टाइम से मतलब मैं यही बोल के कुछ भूख चढ़ा है कि मम्मा आई एम अ बॉय। शायद उसने स्कूल में सीखा, सर जो भी, मैं उस चीज़ से डील नहीं कर पा रही। नहीं डील कर पा रही है, भाषा देखिए इसकी, उसको भूत चढ़ा हुआ है। हाँ, और कोई बताना चाहेगा? मेरा बच्चा जिद्दी है, वो खाना नहीं खाता करता है। सर मेरा बेटा 10th क्लास में है, वैसे मुझे उसके बिहेवियर से या किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी भी उसका माइंड में देखा स्टडीज को छोड़ के स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है। स्टडीज छोड़ के स्पोर्ट्स की तरह जा रहा है क्या? हाँ। बस मैं सिर्फ उतना चाहती हूँ कि वो बैलेंस कर ले दोनों चीज़ें उसके रिजल्ट। मैं उसकी ख्वाहिशें नहीं मारना चाहती, सपोर्ट करती हूँ उसको, पर अभी वो इस चीज़ को समझ नहीं रहा। तो यू दिस इज योर चैलेंज। एग्जांपल देता है कि तेंदुलकर जो थे ग्रेजुएट नहीं थे, राइट, जो डील होती मेरी उसका, वो घर में पूरा दिन अपनी एक्टिविटीज। पहली बार जब ब्रेन हमारे बच्चे का डेवलप हो रहा है, उस समय अगर हमको अंडरस्टैंडिंग है कि ये ब्रेन कैसे डेवलप होता है और उसको हम कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, कैसे उसमें बदलाव लाने के लिए एक रोल अदा कर सकते हैं, तो वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, जैसा कि भाई साहब ने भी कहा, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। पहले तो मैं आपको बता दूं, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका ग्राउंड फ्लोर तैयार रहता है, लोअर ब्रेन बस, और थोड़ा सा राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन 0, अपर ब्रेन 0। लेफ्ट ब्रेन में कुछ नहीं है, अपर ब्रेन में कुछ नहीं है। लोअर ब्रेन क्या होता है? लोअर ब्रेन होता है सर्वाइवल, बेसिक इंस्टिंक्ट जो होती है ना, भूख लगना, डर लगना, रोना, गुस्सा होना, जो हमारी बेस, जिनके लिए हमको सोचना नहीं पड़ता। अभी यहां आग लग जाए तो क्या होगा? सब भागेंगे। कहां भागेंगे? जिधर दरवाजा है, उसके लिए किसी को सोचना पड़ेगा क्या? कौन सा ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा? लोअर ब्रेन। जैसे ही हम लोग को अटैक करता है तो हम डिफेंस करते हैं ना, लोअर ब्रेन। कोई बुराई करता है तो हम दुगनी तेजी से बुराई चालू कर देते हैं, लोअर ब्रेन। लोअर ब्रेन को मजा आता है हिंसा करने में।
मतलब लोअर ब्रेन इज इंस्टिंक्टिव। तो जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें लोअर ब्रेन ऑलरेडी है, उसमें कुछ इंस्टिंक्ट्स हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई मरना नहीं चाहेगा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना, तो वो पैदा होते साथ बच्चे में आती है। और थोड़ा थोड़ा राइट ब्रेन के, जो राइट ब्रेन होता है अनुभव वाला, एक्सपीरियंस वाला, फीलिंग वाला, हम फील क्या करते हैं उसका लेफ्ट ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उदास हो तो आप उदास हो, कई बार हम लेफ्ट ब्रेन घुसेड़ते हैं, डजंट वर्क। अगर आपकी वाइफ परेशान है या किसी चीज से दुखी है और आप जाकर उसको समझाते हो लेफ्ट ब्रेन से, तो उसको समझ में आता है क्या? मैं हस्बैंड से पूछ रहा हूँ, क्यों? तो राइट ब्रेन उसका चल रहा है ना, तुम लेफ्ट ब्रेन घुसेड़ रहे हो यार, तो वहां भी लेफ्ट ब्रेन से लेफ्ट ब्रेन का कनेक्शन नहीं हुआ है। तो राइट ब्रेन में एहसास होती है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके अंदर माँ के पेट के अंदर के एहसास होते हैं। आपने देखा है छोटा बच्चा, उसको हम लोग थप थप करके तो सो जाता है। क्यों सो जाता है थप थप करके? शुरू में उसको पता क्या लगता है, मैं अभी भी अंदर ही हूं। तो उसके माँ की जो धड़कन है ना हृदय की, वो आवाज से उसको सिमिलरिटी फील होती है। उसका कोई ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, लेकिन उसकी ये इम्प्लिसिट मेमोरी बन गई है। उसके राइट ब्रेन में वो थप थप की एक आवाज है। या आप झुलाते हो तो शांत हो जाता है, क्यों? अंदर झूल रहा है। मदर टॉक वॉक्स ना, तो बच्चा वहां झूल रहा है। सॉफ्ट चीजें उसको पसंद आती है शुरू में, क्यों? टेडी वेडी की सब देते हो छोटे बच्चे को। अब कहते हैं ना कोई हार्ड चीज ना दे, क्योंकि उसको ये एहसास होता है कि मैं अभी भी माँ के 1.5 साल तक बच्चे का सिर्फ इंस्टिंक्टिव ब्रेन और राइट ब्रेन, उसका लेफ्ट ब्रेन 0 है। आप जो लॉजिक उसको कहते हो ना, नहीं करना चाहिए बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, इट इज मेकिंग नो सेंस टू दैट चाइल्ड, हम अपनी भाषा में कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया व्हाट इज राइट ब्रेन एंड व्हाट इज बेस ब्रेन। बेस ब्रेन इंस्टिंक्टिव है, बिना सोचे समझे जो रिएक्शन हम देते हैं। रिएक्टिव है, तुरंत रिएक्ट करता है, बिना सोचे समझे रिएक्ट करता है। छोटा वाला ब्रेन, ग्राउंड फ्लोर वाला, उसमें किचन है, भूख लगती है चिल्लाने लगता है, खाना चाहिए, राइट। और राइट ब्रेन मैंने आपको क्या बताया, जो एक्सपीरियंस करता है, जो जहां पर भाव है, भाव का जगत है, इमोशंस हैं। हम खुश हैं, हम दुखी हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, हम बड़े जोश में हैं, हमें बड़ी एनर्जी फील हो रही है। ये फीलिंग्स कहां पर आती है? राइट ब्रेन में, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 1.5 साल से थोड़ा ऊपर होता है, तो धीरे धीरे वो आपसे क्वेश्चन करना शुरू करता है ना, ये क्यों, ये क्या है। अब उसका लॉजिकल ब्रेन डेवलप हो रहा है। जो लेफ्ट ब्रेन होता है उसमें साइंस है, उसमें मैथमेटिक्स है, उसमें रीजनिंग है, उसमें लैंग्वेज है, उसमें सेंटेंस है। उस सेंटेंस का भाव राइट ब्रेन में है, लेफ्ट ब्रेन में भाषा है, और राइट ब्रेन में उसका अनुभव है। ठीक है। क्या होता है इसके बाद? ये होता है, अरे ऐसे बेवकूफ हो यार, टाइम होगा तुम्हारा, तैयार क्यों नहीं हुए यार, तुम्हारे चीज का टाइम था। वो ऑर्डर की बात करेगा, वो डिसिप्लिन की बात करेगा, वो रिजिड, वो फौज है, फौज, लेफ्ट राइट। उसको इससे मतलब नहीं कि अगला क्या महसूस कर रहा है यार, राइट। तो ये घर में मियां बीवी के बाद बहुत होता है यार, होता है कि नहीं होता? जब कहते थे मुस्कुराहट आ गई, भाई बीवी का राइट ब्रेन काम कर रहा है, वो दुखी है यार, उसको अपनी माँ की याद आ रही है, और ये भाई साहब टोपी पहन के लेफ्ट ब्रेन वाली, अरे इसमें क्या है यार, बात कर लो 2 मिनट में, ठीक हो जाओ, अभी क्या हो सकता है इसमें, बताओ, अभी तो होके आई हो, राइट। मेकिंग सेंस? ये सारा झंझट इसीलिए होता है। अगर राइट मिले तो झगड़ा नहीं होगा, या राइट को कम करके हम लेफ्ट में चले जाएं, झगड़ा नहीं होता। लेकिन समझने की चीज ये है कि जब आपका बच्चा छोटा है, तो आपके लिए समझना जरूरी है कि जब वो राइट ब्रेन के इन्फ्लुएंस में, पहले तो मैंने क्या बताया, छोटे बच्चे का होता ही राइट ब्रेन, लेफ्ट तो होता ही नहीं है, लेफ्ट डेवलप हो रहा है। तो हमको उसको लेफ्ट को डेवलप करने में मदद करनी है। और जो आपके बच्चे हैं उनका सब डेवलप हो चुका, चारों ब्रेन थोड़े, उसका राइट भी हो चुका, लेफ्ट भी हो चुका, लोअर भी हो चुका, अपर भी बन रहा है। आपका काम है इंटीग्रेशन सिखाना।
जहां जहां वो चैलेंजिंग आपको लग रहा है, इसका मतलब अभी उसके माइंड का बैलेंसिंग ठीक नहीं है, उस समय उसको ऐसा व्यवहार करना जिससे उसका इंटीग्रेशन हो, उसके ब्रेन्स का आपस में कनेक्ट स्थापित करना वो सीखे उस समय। और अगर उस समय सीख गया तो फिर पूरे जीवन यूज करेगा। ठीक, चलिए आगे। तो अब हमने क्या कहा, जब भी आप चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं तो उथल पुथल दिमाग में मचने का मतलब ही होता है कि राइट ब्रेन में कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई फीलिंग। हमारे राइट ब्रेन को सिग्नल आता है शरीर से, जो सेंसेशन होते हैं, तबीयत खराब हो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है ना, हो जाता ही नहीं हो जाता। छोटा बच्चा, हमारी एक बहू है, वो आइडियल पेरेंट है। मैं अभी लाया नहीं तो मैं अपने मेरे भाई का पोता है, वो तो हमारा भी पोता, हमारी ज्वाइंट फैमिली है। वो अभी मेरी वाइफ सुबह याद दिला रही थी, हम लोग फोटो देख रहे थे कि यार वो 2.5 साल का हो गया, एक भी फोटो उसका ऐसा नहीं जिसमें वो मुस्कुरा नहीं था, एक भी फोटो उसका, 1000 फोटो हो गए। बताओ क्या कारण हो सकता है? उसकी पेरेंटिंग ऐसी है कि उसको आज तक उसकी मम्मी ने किसी चीज में डांटना, कुछ टोकना तो दूर की चीज है, कभी क्वेश्चन भी नहीं किया। कुछ भी कर ले वो उसको बड़े प्रेम से डील करती है, उससे डायलॉग करती है, बात करती है। तो 2.5 साल का हो गया, उसने ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया यार नेगेटिव इमोशन इस टाइप की। कोई उसका जो लोअर ब्रेन है वो अगर उसकी तबीयत खराब है तो क्रैंकी हो जाता है, या कभी उसके मन की लोअर ब्रेन एक्टिव है तो ऐसा बिहेव करता है जैसे नहीं करना चाहिए, बट उसको फर्क नहीं पड़ता। पार्टी चल रही है, उसके सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त आए हुए घर में, मगर उस समय अगर वो कुछ अटेंशन की गुजारिश करता है तो सबसे पहले उसको देखती, बाकी किसी को नहीं देखती। ठीक है, तो उस बच्चे के हमेशा राइट ब्रेन से पहले वो कनेक्ट करती है, राइट ब्रेन से कनेक्ट करती है। उस बच्चे को एहसास होता है कि मुझे समझ रही है, मेरी फीलिंग को समझ रही है, फिर वो अपना कुछ लेफ्ट ब्रेन की बात करती है, जो उसको समझाने का प्रयास करती है, लॉजिक देना चाहती है, वो बाद में करती है। पहले बच्चे को राइट ब्रेन की उसको टच करना, उसको हक करना, उसको बोला अच्छा ऐसा लग रहा है, हाँ ऐसा तो मुझे भी लगता था, तुम्हें रोना आ रहा है, हाँ रोना है, कुछ लग गया इसलिए रोना आ रहा है। मतलब उसको निगेट करने की बजाय किसी व्यक्ति की राइट ब्रेन की इमोशन को, फीलिंग को टोकने की बजाय, निगेट करने की बजाय अगले को एहसास कराना कि मेरे को समझ में आ रहा है कि आप क्या फील कर रहे हो। He feels felt। समझ में आ रहा? उसको लगे कि जो मेरी फीलिंग है अगले ने, पहला स्टेप ये है, बच्चे के लिए नहीं, पूरी दुनिया की हर रिलेशनशिप का मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं। अगर आपकी वाइफ को ये लग जाए ना कि वो जो फील कर रही है आपने फील कर लिया, तो 75% प्रॉब्लम खत्म हो गई। फिर आप बड़े अच्छे से लेफ्ट ब्रेन से बात कर सकते हो, लॉजिक की। दुनिया में कोई भी चैंपियन लेफ्ट ब्रेन से नहीं बना। इंस्पिरेशन क्या है, जोश क्या है? जोश राइट ब्रेन है। पॉजिटिव कैटेगरी अंदर इमोशन आई, मैं हिमालय पे चढ़ गया यार। जितने चैंपियन हैं वो इसलिए चैंपियन नहीं है कि लेफ्ट ब्रेन स्किल है उनके पास, क्योंकि वो अपनी इमोशन को, अपनी पूरी ताकत को फोकस करके उसमें लगाते हैं। जो सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली का बहुत ज्यादा राइट ब्रेन में कंट्रोल है, इसलिए वो इतने बड़े चैंपियन बन पा रहे हैं। वो अपनी इमोशंस को चैनलाइज, इमोशन की ताकत को चैनलाइज करते हैं। लेफ्ट ब्रेन बताता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वो लॉजिक जानता है, वो मैथमेटिक्स जानता है, वो साइंस जानता है, ये करेंगे तो ये होगा। लेकिन राइट ब्रेन सुनने के मूड में पहले उसको तैयार तो करोगे कि तुम्हारी बात सुने। तो तुम्हारी बात सुने उसके लिए पहले तुमको वो फील करना पड़ेगा, वो क्या फील कर रहा है। तो महावत इसकी मास्टरी कर लेता, आपने सही कहा। वो हाथी के थिंकिंग को, बिहेवियर को, चाल ढाल को समझता है, आप अपनी कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमारे लेफ्ट ब्रेन को भी समझना पड़ेगा कि राइट ब्रेन की क्या ताकत है। भाई कोई बहुत दुखी है, रो रहा है, उस समय आप लेफ्ट ब्रेन की उससे बात करते हो, आपको लगता है उसको समझ में आता है? नहीं आता ना। लेकिन ये डे टू डे हर वक्त होता है कि हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन
में बैलेंस नहीं होता, कनेक्टेड नहीं होता, इंटीग्रेशन नहीं होता। लेकिन हम लोग बात यूज हमेशा अमूमन लेफ्ट ब्रेन, और माँ बाप को तो मैंने जब देखा अपने बच्चों को समझाते हैं कौन सा ब्रेन यूज करते हैं, और अभी हम क्या सिखा रहे हैं, पहले कौन सा यूज करना है, हमेशा लेफ्ट तब यूज करना है पहले जब अगला भी एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास लेफ्ट ब्रेन के मुंह में बैठा है, जब उसका राइट ब्रेन शांत है, वहां कोई हलचल नहीं है, न वो दुखी है, न परेशान है, न उसके अंदर कोई कंफ्यूजन है, तब हम लेफ्ट टू लेफ्ट बात कर सकते हैं। अदरवाइज पहले हमको कहां से कनेक्ट होना है, राइट से। राइट का कनेक्शन अच्छा बैठ गया, फिर हमको कहां जाना है, ठीक। चलिए अगला, ये बहुत अच्छा है, आपकी जो टोन बात करने की कैसी हो। क्या हो गया कबीर बेटा, क्या हो गया, ये चीज अच्छी नहीं लगी आपको, अच्छा चलो उसको यहां से हटा देते, नहीं मजा आ रहा आपको खेलने में। हमारी टोन कैसी बात करने की, एक नर्चरिंग सॉफ्ट, बच्चा सॉफ्ट चीज है ना यार, इतना बड़ा थोड़ी हुआ, आपकी तरह उसने नहीं देखी है दुनिया भर के पहाड़ वहां चढ़ाई नहीं किया अभी, इज वेरी सॉफ्ट, एकदम जैसे शुरू में मैंने बताया बाहर निकलता है तो कितना सॉफ्ट रहता है। तो हमारी जब टोन हो, जब उससे राइट ब्रेन टू राइट ब्रेन कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारी टोन, हमारा फिजिकल टच, ये सारा मोहब्बत वाला हो, प्यार वाला हो, सॉफ्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन जजमेंटल, हमको कोई बताए नॉन जजमेंटल का मतलब क्या है। जब हम उससे राइट ब्रेन टू राइट ब्रेन कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा है कि गधा है क्या, ये डिसिप्लिन नहीं है क्या यार, मेरी बेइज्जती करा दिया, सीख क्यों नहीं रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतनी देर से क्यों हो रहा है, सो क्यों नहीं रहा है, रो क्यों रहा है, परेशान करता रहता है। जब हम किसी से उस टोन में बात करें तो हमारी टोन बिल्कुल नॉन जजमेंटल है, हम कहीं उसको कैटेगराइज नहीं कर रहे, हम तो कह रहे कभी नहीं जज करना चाहिए, इंसान को कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, किसी के व्यक्ति, ऑलरेडी आप सबने मुझे जज कर लिया होगा, कुछ ना कुछ तो इमेज बनाई ली होगी यार ये आदमी ऐसा है, दैट इज जजिंग समवन, तुरंत जज कर लेते हैं, हमारा दिमाग ऐसा प्रोग्राम है कि तुरंत जज कर सकते हैं। जबकि जजमेंट बहुत कम एविडेंस के बेस पे हम कर रहे हैं, बहुत कम नॉलेज के बेस पे कर रहे हैं, तो बच्चे को भी जज नहीं करना है उस समय। जिस समय हम राइट टू राइट ब्रेन में, जजमेंट किसका फंक्शन है, किस ब्रेन का, लेफ्ट। अभी लेफ्ट ब्रेन यूज करने की मनाही है, अभी कर्फ्यू लगाया हुआ, पहले राइट ब्रेन चलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है, ये आप लोग यूज कर सकते हैं जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए। जो भी घटना हुई है जिसके कारण वो डिस्टर्ब है, आप डिस्टर्ब हो, उसको बोलो यार तुम बताओ उसको क्या हुआ, फिर ये हुआ, उसके बाद। तो बच्चा जब स्टोरी बताता है ना, स्टोरी बताते 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 देखना वो धीरे धीरे राइट से लेफ्ट की तरफ जाने लगेगा। हमको सेटिस्फेक्शन हो रही है, हमको सही चीज बता रहा है, तो उसको हमको इनकरेज करना है पुराने उसकी स्टोरीज बताने के लिए। अगर वो बताएगी जब मैं 5 साल था मेरे साथ ये हुआ, उसमें मुझे बड़ा बुरा लगा या मुझे बड़ा अच्छा लगा, 6 साल का था, 7 साल का था, 8 साल का था, 10 साल का था, 12 साल का था, तो क्या होगा, अगर उसकी कोई पुरानी बैड मेमोरी है, ऐसी मेमोरी जो उसको अभी भी बहुत सारी है। मैं यहाँ सबकी पोल नहीं खोलना चाहता, नहीं तो सब ईमानदारी से बताया तो सबकी बहुत सारी होगी। स्कूल में मैम ने डांट दिया था, क्लास से निकाल दिया था, स्टेज में बोलने गया तो माइक छूट गया, ये बेइज्जती हो गई, वो बेइज्जती हो गई। लोगों को अपनी ऑटोबायोग्राफी में बहुत याद रहता है यार कब कब उन्होंने बड़ा बुरा फील किया अपनी लाइफ में, उसको भुला नहीं पाते हैं, और उन अनुभवों के कारण आज भी उनका व्यवहार इंपैक्ट होता है। तो अगर उन अनुभवों को हम डील कर लें अपने ब्रेन में तो ये समस्या सॉल्व हो सकती है। तो आपके बच्चों से आपको क्या करना है, जब भी मौका लगे वो आपको डिस्टर्ब दिखे तो ऐसे डायलॉग करना है कि वो अपने पुरानी घटनाएं जो हो चुकी हैं उनको फील करके आपको सुना सके और आप भी उसको फील कर सको और फिर उस पर डिस्कशन हो। तो जब उस पर डिस्कशन होगा तो थोड़ा उसका लेफ्ट ब्रेन और अपर ब्रेन डेवलप होगा।
ये जो मैंने बात बताई ये समझ में आ गई हो, नहीं तो मैं इसको रिपीट करूंगा। आ गई समझ में? आपके बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं ना, उनकी कुछ मेमोरीज बन चुकी हैं और उन मेमोरीज का उनके आज के व्यवहार के ऊपर इम्पैक्ट है और हो सकता है उनको भी इस चीज का एहसास ना हो। ये लेफ्ट ब्रेन में रिकॉर्डेड नहीं है, ये कहां रिकॉर्डेड है? राइट? तो जो हमारे अनुभव है खट्टे मीठे वो राइट ब्रेन में रिकॉर्डेड है, हम बात लेफ्ट ब्रेन से करते हैं। तो अगर हम अपने राइट ब्रेन की वो घटना याद करें और उस समय जो हमको हुआ था उसको बोल सके, उस पर डिस्कस कर सके, तो उसका इंपैक्ट धीरे धीरे, ठीक है। तो अब आइए अपन अपर ब्रेन नहीं, हाँ चलो पहले इसके पहले दिखाओ। अब ये देखिए, हमको सीढ़ी बनानी है लोअर ब्रेन से अपर ब्रेन, नहीं अब डाउन स्टेयर ब्रेन से अपस्टेयर ब्रेन। अपस्टेयर ब्रेन क्या होता है अब हम आपको बताते हैं। सबसे जोरदार चीज जो आप जितनी क्वालिटीज अपने बच्चों में चाहते हैं ना, वो सब पता है कहां होती है? वो पहले माले पे होती है, वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होती। ग्राउंड फ्लोर में तो झगड़ा झंझट होता है, लड़ाई झगड़ा। फर्स्ट फ्लोर में समझदारी है। अब सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए कोई ब्रेन यूज करता है क्या? बिल्कुल यूज करते ना। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, कुछ नहीं, सांस अपने आप ली जाती है। ये आपके लोअर ब्रेन का फंक्शन है। नींद में भी आप सांस लेते रहते हो जब आपके बाकी सारे ब्रेन एकदम शांत है। ऐसे कुछ डर होगा, ऐसे आप ब्लिंक करना ऑटोमेटिक होता है। जब मैंने कहा आग लग गया तो भागना ऑटोमेटिक। तो जो हमारा लोअर ब्रेन है, डाउन स्टेयर ब्रेन है, उसमें ये होता है फाइट और फ्लाइट। या तो झगड़ने लगता है या भागता है मौके से, या तो डर के मारे किसी सिचुएशन को फेस नहीं कर सकता तो भाग देगा, और या फिर हिंसक हो जाएगा, लड़ने लगेगा। ये डाउन स्टेयर ब्रेन के सिम्टम्स हैं। एंगर और फियर, गुस्सा हमेशा लोअर ब्रेन में आता है, ग्राउंड फ्लोर पे आता है। फियर, डर जाना किसी चीज से, ये भी वहां पर होता है। अपस्टेयर ब्रेन में पढ़िए क्या क्या होता है, सब बढ़िया चीजें, थिंकिंग, इमेजिनिंग, प्लानिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, मोरालिटी, सही क्या है, एथिक्स, विजडम, साउंड डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, कंट्रोल ओवर इमोशंस एंड बॉडी। अपस्टेयर ब्रेन में सारी समझदारी, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, प्लानिंग की सारा अपस्टेयर ब्रेन से। ये ब्रेन का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये डेवलप होना शुरू होता है 2-2.5 साल के बच्चे में, और ये फुली डेवलप हो जाता है अप टू मिड 20s। 20-25 साल का होते होते बच्चे का अपस्टेयर ब्रेन फुल शेप में आ जाता है, और उसके बाद बदलता रहता है। लेकिन तब तक जो है चारों ब्रेन के कंपोनेंट फुली डेवलप हो जाते हैं। ये अपस्टेयर ब्रेन है जो हमको सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए लाइफ में। और ये जो क्वालिटीज आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, जिस इंसान में क्वालिटीज होती हैं, वो बहुत जल्दी अपने लोअर ब्रेन, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस को अपर ब्रेन से कंट्रोल करता है। जो महावत वाला आप कह रहे थे ना, तो ये यहां बैठा, सारा ज्ञान यहां बैठा है, विजडम यहां बैठा, डिस्क्रिशन यहां बैठा है। डाउनस्टेयर ब्रेन इज वेल डेवलप्ड एट बर्थ। पैदा होते साथ डाउनस्टेयर ब्रेन है हर बच्चे में। नीचे वाला पहला माला, ये ग्राउंड फ्लोर सबका बन के आया है। फर्स्ट फ्लोर मैंने लिखा ना मिड 20s में पूरा डेवलप हो जाता है, 25 साल तक आते आते पूरा डेवलप हो जाता है। अब आगे स्ट्रेटजीज है। इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ पूछिए, क्योंकि मैं थक गया हूं, मैं पानी पीऊंगा। आप लोग पूछिए जिसका आंसर या तो श्रुति दे या सिद्धिया दे। बेटा माइक दो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है बहुत कुछ मैंने बता दिया, उस पर आप मैं चाहता हूँ आप लोगों की कुछ प्रतिक्रिया या कुछ प्रश्न हो। सब मैं बात करना चाहूँगी। को मुझसे शिकायत है कि आपने सही समय पे मेरी बात नहीं सुनी, तो शायद मैं ना जो मेरा इंटरेस्ट है उसको मैं अपने तरफ से आगे बढ़ा पाता है, और उसका स्टडी टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उससे हमें मेरे से मुझसे यही शिकायत रहती कि आपने ध्यान नहीं दिया। आप शायद कोशिश करती तो मैं क्रिकेट के लिए आगे बढ़ सकता था, जबकि मैंने सपोर्ट किया था सर,
पर ये 2 साल जो कोविड रहा, इसके कारण मैं पजेसिव भी थी उसे कि मैं ऐसे समय में बच्चे को कहाँ भेजूंगी। तो इस शिकायत को मैं दूर कर पाऊँ उसकी। चलिए हम आपको अपनी बिटिया सागर मलकानी मैम। सागर, अच्छा। तो अभी अगर आप जो अभी आपने जस्ट सीखा, तो जब वो ये आपसे कह रहा है कि आपने मेरा जब आपको सपोर्ट करना चाहिए था तब आपने नहीं किया, वो टाइम चला गया, तो उसका कौन सा ब्रेन बात कर रहा है? मेरे ख्याल से उसका लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है, इमोशनल राइट कर रहा है। सॉरी, मैं समझती हूँ पर मैं कंपेयर करके आपको नहीं बता पाऊंगी कि हाँ उसके इमोशन से आगे मेरे साथ करता है, पर उसे शिकायतें भी होती हैं और कई बार वो शिकायतें मैं दूर नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास मैं स्पीचलेस होती हूँ। उसका हर्ट इतना डीप हो गया है कि वो जब उसका जो अभी बात बोला ना इन्होंने कि भाई पुराने उसके 10-12 इंसिडेंट्स को जोड़ के उसके मन में ये बात है कि मेरी मम्मी को जब सपोर्ट करना चाहिए था उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो अब हर बार जब वो उसको कोई ऐसी इंसिडेंट होता है इससे रिलेटेड जिसमें वो नाखुश होता है तो उसको अपनी वो पुरानी चीज याद आ जाती है, राइट? और ये उसका कंप्लीटली राइट ब्रेन बात कर रहा है। तो अगर राइट ब्रेन को डील करना है तो फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? तो आई डोंट नो, आपकी लाइफ में भी कोई तो ऐसी चीज होगी पुरानी जिसका आपको थोड़ा दुख रहता है? सिर्फ मैम बचपन में ये रहा था कि कॉन्फिडेंस की कमी थी, पर उस चीज को मैंने रियलाइज किया कि मेरे अंदर ये कमी है, तो मैंने समय के हिसाब से उसे दूर किया। कब रियलाइज किया? मैंने 16 इयर्स की एज में। हाँ, आपने रियलाइज किया कि मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मैंने 16 इयर्स में ये रियलाइज किया और मैंने उसको दूर किया, उस पे काम किया। बिल्कुल। हाँ, अभी आपका बेटा 10th में, इज 14-15 आई थिंक 15 मैं समझती हूँ मैम उसको कि ये इमोशनल है, पर कई बार रील नहीं कर पाती हूँ उसके साथ। पता है बहुत सिंपल क्यों इसलिए स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे ही उसने मुझे ये बोला मैं कोई ऐसी बात बोल दूं कि वो शांत भी हो जाए और वो ये अपना स्टेटमेंट भी चेंज कर दे। मैं शांत नहीं करना चाहती हूँ मैम उसको, मैं सिर्फ उसको एक लॉजिक बताना चाहती हूँ कि वो जो करना चाह रहा है, मे भी अगर वो नहीं कर पाता है तो वो थोड़ा सा अपने लिए इतना एजुकेशन रखे कि वो कुछ कर पाए। तो आपको लगता है कि इतनी कॉमन सेंस आज की तारीख में किसी को सिखाने की जरूरत है? लाइक ही नोज कि मेरे पापा के पास इतने पैसे हैं कि मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। इस तरह की मेंटालिटी नहीं है उसकी। सो सबको कॉमन सेंस है भाई। हम लोग जब एकदम छोटे बच्चों की बात करते हैं, दैट इज द इजीएस्ट थिंग। उसको नौकरी 100% मिलेगी। आप खुद ही कह रही हैं कि उसके व्यवहार से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई भी वो अच्छी करता था, अब वो स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है तो थोड़ा पढ़ाई में कम लेने लगा है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लाइफ में उसको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो जो पहली बात तो ये आपका डर है, ये सच में डर है कि नहीं है, इसको पहले देखिए। ये वाकई ऐसा डर है कि उसके लिए जिस मोमेंट में वो आपसे, अगर ये चीज रिपेयर नहीं हुई है ना, अगर उसके मन में ये रह गया कि मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, दैट इज अ मच बिगर हार्म अगर वो आपकी रिलेशनशिप में कॉज करेगा। तो इट इज नॉट इजी, बट एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, 3-4 बार में बिना कुछ बोले उससे सुनना पड़ेगा, बिना जज किए उससे जाननी पड़ेंगे वो इंस्टेंसेस जो आपको भी याद आ जाएंगे जब वो बताएगा कि मैं उस दिन स्कूल से आया था, मेरा बहुत मन था जाने का, वो एक कोच आए हुए थे लेकिन तुमने उस दिन मुझे जाने नहीं दिया, तुमने कुछ बोल दिया। अब आपके लिए वो एक इंसिडेंट था जो भूल गया है, उसके लिए वो इंसिडेंट उसके मन में रह गया। कई बार मैम हम बच्चों की तरह सोच नहीं पाते ना कि हम कैसे सोचेंगे, हम अपनी तरफ से लॉजिक यही तो सिखा रहे हैं भाई। नहीं, लेकिन बच्चे की तरह सोचना ही नहीं है। आप अपनी लाइफ में दुखी नहीं होती क्या अपने आसपास वालों से? तो कब आपको अच्छा लगता है जब वो सामने वाला थोड़ा सुनता है कि किस चीज से आपको खराब लगा है। तो सुनना बहुत जरूरी है। He is very intelligent. He has seen what sacrifices you have made for him. And अगर वो एक मोमेंट में ये कह रहा है कि मम्मी आपने मेरा साथ नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो ये बाकी सारी चीजों को हटा दे रहा है, उस मोमेंट में वो उससे हावी हो जा रहा है बस। तो उसमें ये आपको नहीं सोचना चाहिए कि ये कुछ नहीं देख रहा, कि मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की, कितनी कोशिश की कि ये मैंने इसको सपोर्ट किया। वो एक लाइन कहने से वो आपकी सारा जो आपने अच्छा काम किया है वो नेगेट नहीं हो जा रहा है। नहीं मैम, मैंने मुझे उससे ये चीज़ बताई जो कोविड पीरियड का टाइम रहा कि बेटा मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। फिर देखिए लेफ्ट ब्रेन, देखो आप एक चीज समझो, बड़ा परेशान हो जाते हो। एक चीज जो मैं बार बार महसूस कर रहा हूँ, ये महसूस कर रहा है और रंजना वो भी महसूस कर रही है कि ऑल अलोंग यू आर यूजिंग योर लेफ्ट ब्रेन। आप अपने को जस्टिफाई कर रहे हो, आप
को ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर सकती थी मैंने सब किया है, और या हेल्पलेसनेस फील हो रही है, मतलब आप पूरा उसके वर्ल्ड में घुसने का प्रयास ही नहीं कर रहे। जस्ट कंसीडर दिस, जो ये क्या कह रही है, बिना कोई जजमेंट किए मुझसे पूछे कि तुमको पहली बार बेटा कब लगा मुझे वो कहानी करनी, व्हेन दिस फर्स्ट कब हुआ। जैसे इसने आपको 16 साल में मैंने रियलाइज किया मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तुमको पहली बार कब ऐसा लगा यार कि हम तुमको सपोर्ट नहीं कर रहे, उस घटना को पूरा डिटेल में बताओ। जब बताया उस समय भी बिल्कुल एम्पैथी से हमको सुनना, एकदम घुसड़ना नहीं अपनी बात पीछे। क्यों? क्योंकि जब वो नरेट कर रहा है तो अपनी भावना की अभिव्यक्ति कर रहा है, वहाँ कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। ये जो चीज आपका बेटा आपको कह रहा है, इससे कोई और भी ऐसी कोई सिमिलर चीज है जो कभी आपके पेरेंट्स ने, आपके हस्बैंड ने, आप किसी और ने बोली आपसे? ऐसा कुछ कोई ऐसी चीज जो ये लोग बोलते हैं जिसमें इनका ऐसा कहना है कि इस चीज में, आपका नाम क्या है? संजना। कोई ऐसी चीज जिसमें ये लोग कहते हैं कि संजना इसलिए तुम? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। पक्का? हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है? बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके भी राइट ब्रेन से किसी ने कनेक्ट नहीं किया है। अभी आपके देखिए, फॉर यू टू कनेक्ट विद सागर राइट ब्रेन में आपको भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, कोई आपको भी तो समझे। जैसे अभी आपने कितनी छोटी सी चीज बोली, कहाँ, वेयर वाज योर स्कूलिंग डन? हाँ जी, मैंने हमारी कॉलोनी में था उस समय, एवरग्रीन करके, इंदौर में। जी। अच्छा, और आपका कहाँ मन था जाने का, जहाँ आपके नहीं पेरेंट्स? ऐसा कुछ नहीं था, मैं उस अपने स्कूल से सेटिस्फाइड थी। अच्छा, लेकिन आपको ऐसा लगा कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस और हो सकता था, हाँ। जिस पे आपने 16 इयर्स की एज से काम करना शुरू किया। अब आपकी अपनी एक खुद की लाइफ स्टोरी है ना, उसमें कितनी सारी चीजें हुई होंगी, तो परहैप्स कुछ शायद आपका भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप किसी के साथ बांट नहीं पाई हैं, लेकिन आपका बेटा अब आपका बेटा आप बन गया है। ही इज द सेम एज दैट यू वर। मैंने उस, जैसे आपने बताया लेफ्ट ब्रेन और राइट, मैंने उसके इमोशंस की बातें सुनी नहीं है। सिर्फ मैं इतना चाहती हूँ कि वो मुझे, मैं उसको अच्छी तरह समझा रहा हूँ और वो उस चीज़ को समझे कि अब क्या करना है। अब एक और यही चीज, इसीलिए आपका अभी जो आप बार-बार मुझसे बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा अगर सोच के रिफ्लेक्ट करें, एक कॉन्वर्सेशन में जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए, स्पेशली विद अ 15 ईयर ओल्ड 16 ईयर ओल्ड इज डिफिकल्ट। ये बच्चे अब ऐसे बच्चे नहीं है जब आप छोटी थी, क्योंकि जो मम्मी पापा बोले ना वो हम एक बार में मान लेते हैं। आप लोग ने तो 20-25 साल की उम्र तक जो हाँ आपके दुख करना, मुझे पता ही नहीं चला मैंने ये बोला, उसका ऊपर ये इम्पैक्ट हो गया। समझ रही हो? मेरा कोई भाव थोड़ी था उसको हर्ट करने का, जैसे आप कह रहे हो। आपका कोई भाव थोड़ी अपने बच्चे को न समझने का, न सुनने का, या एम्पैथी न दिखाने का, ऐसा नहीं है ना। मेरा भी नहीं था, इसलिए मुझे याद ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मुझे उठा के पूछा कि आपको क्या कहना है, तो मैं अगर आप होता तो क्या कहता? मैं यही कहता, अरे यार क्या बात कर रहा है, मजाक कर रहा है, मुझे तो इंसिडेंट ही याद नहीं है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं। मैं तो हमेशा इसको इनकरेज करता हूँ, मैंने तो हमेशा इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। गिनाने लगता है देखो कब कब मैंने किया है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। पता है क्या किया? एज ए चेयरमैन, मैं उस संस्था का चेयरमैन हूँ, सब मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं स्टेज पे गया, मान लीजिए आप हैं, खड़े होइए, मैंने उसको गले लगाया और क्या बोला पता है? सॉरी। किस बात की सॉरी? पता है किस बात की सॉरी? इस बात की सॉरी यार तुमको उस दिन दुख हुआ। वो दुख तो सच्चा है कि झूठा है, ये बताओ। दुख सच्चा है ना, कारण गया अभी भाड़ में, दुख सच्चा है ना। और अगला कह रहा है कि आपके कहने से हुआ मुझे। तो सोचो जब मैंने उसको गले लगा के बोला यार आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे, उसको क्या फील हुआ होगा? अरे वो रोने लगा यार, और उसका वो दर्द उस दिन से क्या हुआ? आई बात समझ? अरे उसको गले लगाओ जाके, अपना लेफ्ट ब्रेन का लेक्चर मत पिलाओ। प्यार से बोल रहा हूँ, प्यार से। नहीं बात कोई भाई बच्चे के भले के लिए इसलिए कठिन बात कह रहा हूँ। अपना दिमाग बिल्कुल यूज मत करो, बिल्कुल अपना दिमाग यूज नहीं करना है। लेफ्ट ब्रेन बच्चा है ना मेरा यार, हाँ यार हमसे गलती हो गई होगी, तुम अभी तक दुखी हो यार उस बात से, आई एम सॉरी यार। बताओ यार कब कब कैसे कैसे क्या हुआ। जब वो उसको बड़े प्यार से बताएगा, बताते बताते हो सकता है वो भी इमोशनल हो जाए, वो भी उसको रियलाइज हो रही यार मैं मम्मी को बेकार परेशान कर रहा हूँ, मम्मी को तो ऐसा कभी भाव था ही नहीं। लेकिन ये भाव से भाव जगाओगी तब होगा मैडम जी, दिमाग से नहीं होगा।
अगर दिमाग से आदमी सुधरता तो सत्संग सुन के हर आदमी देवता बन जाता। गुरुजी आपको बताते ना कि जाओ घर में वो मुंह में छोड़ो, ये कितने लोग छोड़ पाते हो? लेफ्ट ब्रेन से लेफ्ट ब्रेन सुन के चले आते हो। जिसका कनेक्ट हो जाता है, मीरा का कृष्ण ने कनेक्ट हो गया। हाँ, ये मैडम कुछ कहें। सर एक्चुअली मेरा बेटा 9th क्लास में है। मैं तो चाहती हूँ कि बहुत अच्छा इंसान बने, सारी खूबियाँ हैं उसमें, बट जो इन्वायरमेंट मिलता है, मैं जैसा आपने उन्हें सिखाया कि वाकई कमी तो हमारे अंदर ही है, उन्हें सुधारना भी है, लेकिन बाकी इन्वायरमेंट में जो इन्फ्लुएंस होते हैं ना वो लोग, तो उसका क्या किया जाए? हम तो उसको सारा देंगे प्यार से भी, जैसा लेसन आपने उन्हें सिखाया कि जाके पहले हक करिए, पुरानी बातें पूछिए, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन बाकी का क्या करें सर? घर का ही वैसा नहीं मिले तो? चल इन्वायरमेंट बता दो, छोटी प्यारी एग्जांपल देके बता दो। इन्वायरमेंट तो देखो अपने कंट्रोल में नहीं है। स्कूल में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? बनावट आ जाती है सर उनके अंदर कि हम वैसे ही हैं, और वो फिर क्या होता है सभी के थ्रू मिलता है उन्हें वैसा, ये तो ऐसा ही है, फिर वो बनना शुरू हो जाता है। फिर क्या किया जाए? इसमें देखो मैंने शुरू में भी एक बात कही, सारा इन्वायरमेंट एक तरफ, उससे 50 गुना आपका इन्फ्लुएंस है। हाँ, मैंने कहा मैं देती हूँ, तो मत चिंता करो, फिर आप मत चिंता करो। क्योंकि फिर मुझे ये ब्लेम किया जाता है कि आपका ज्यादा सपोर्ट है ना। इवन स्कूल के टीचर्स भी ये कहते हैं कि आप अपने बच्चे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही हो, वो गलत कर रहा है तब भी आप, तो कहाँ सपोर्ट मिलेगा? चलो मैं भी एक अपस्टेयर ब्रेन में एक उल्टी बात भी कहूंगा। हाँ, हो सकता है लोग आपको ये कहते हो। सर मैं इस पर एक थोड़ा मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। ये जो अभी इतनी देर से डिस्कशन हो रहा था, ये प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूँ, उसका सॉल्यूशन भी हो गया है। मेरा बालक जब 10th क्लास में पढ़ रहा था, इसी स्कूल का ऐसे टॉपिक है, उसने आंसर में, उसको जब 10th में था तो करियर डिस्कशन जब हुआ तो वो मुझे एक दिन बोला पापा मुझे डिफेंस में जाना है। अब ये उसने तय कर लिया मुझे डिफेंस में जाना है। उसने ऐसे मम्मी को भी कर दिया कन्वेंस, दादा को कर दिया, दादी को कर दिया कि मुझे डिफेंस में जाना है। मैंने कहा ठीक है तू डिफेंस में जाना। मैंने उसे कभी भी ये नहीं बोला कि तुझे ये नहीं करना है, मैंने उससे सिर्फ ये पूछा कि क्यों करना है, ये मन में विचार कहाँ से आया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपको पहले उससे ये प्रश्न करना है। उसने मुझे बताया कि पहले तो मेरी एक बात जो मैं देख करके कि मुझे जाना चाहिए, अब 6 महीने बाद जब उसको मैंने कुछ चीजें दी वो नहीं कर पाया तो उसको लगा कि नहीं यार ये तो मुझे लगा था इसलिए मुझे जाना चाहिए। अभी वो जेईई की तैयारी कर रहा है और वहाँ भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके, और इतना फोकस्ड पढ़ाई कर रहा है कि मैं उसे बोलना नहीं पड़ता मुझे पढ़ने के लिए। मैं घर में एक भी दिन उसे पढ़ने के लिए नहीं बोलता हूँ, वो स्वयं अपनी सारी चीजें करता है। मैंने अपने जीवन में कभी अपने दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं बोला। जीवन में मेरी वाइफ को नहीं बोलते, मुझे बोलते। Fortunately, even I never told both my daughters कि पढ़ाई करो। In fact, जो मेरी छोटी डॉटर है, जो अभी यहाँ नहीं, she is in अभी आपने ऑक्सफोर्ड का किस्सा सुन लिया ना, ये एसआरसीजी ऑक्सफोर्ड का दूसरा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनिए, तारे जमीन टाइप बच्चे का। हाँ, मेरी छोटी डॉटर है, वो शुरू से आर्टिस्टिक थी, तो जब स्कूल में भी बैठी रहती थी, इनफैक्ट जब 3rd 4th में थी और 5th में, तो उसकी टीचर ने, इंग्लिश टीचर ने मुझे बुला के स्पेशली बोला कि इसका तो ध्यान क्लास में रहता ही नहीं है, ये तो बाहर ही देखती रहती है। बट स्टिल मुझे कभी नहीं आया कि क्योंकि टीचर ने बोला है तो मैं उसको डांटूं और बोलूं। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी मुझे याद है, जो शायद मैं कल भी उनके साथ वो करूँगी, कि जो इन लोगों का स्कूल था बच्चों का, वो बहुत अच्छा स्कूल था। और स्पेशली मैंने भी ये पहले एक बहुत, जैसे यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल्स होंगे, बहुत सारी स्ट्रेंथ रहती है, वहाँ पे पढ़ती थी सिद्ध्या, तो मुझे लगता था नहीं ये बहुत सेंसिटिव है और अपनी चीज़ रख नहीं पा रही है, शायद डर रही है, तो दैट वाज, मुझे लगता था कि नहीं मैं इसका स्कूल चेंज करूँ। और लकीली उस समय सतना में एक बहुत अच्छा स्कूल आया, लवडे, और जिनके प्रमोटर्स और हमारी थिंकिंग सेम ही थी, तो आई पुट हर इन दैट स्कूल। और जहाँ पे भी यही था स्ट्रेंथ कि क्लास इन्हीं से स्टार्ट हुई थी, तो 10 स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ, बच्चे पे ध्यान दिया गया, उनको मौका दिया गया कि आप अपनी चीज़ करो। तो आई थिंक कि शी वॉज अ चेंज पर्सन आफ्टर दैट। और छोटी बेटी शुरू से वो बहुत ज़्यादा नॉटी थी और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था क्लास के बाहर।
इनफैक्ट वो लेटर्स भी उल्टे लिखती थी, एक्चुअली तारे ज़मीन पर वाले। तो बट मैंने कभी इस चीज़ का टेंशन नहीं लिया कि अरे एक तो इतना वो कर रही है, लगता था ये करे, बट मैंने उसको कभी मैंने तो कभी बच्चों को मारा कभी भी नहीं है। और पढ़ने के लिए एक्चुअली हमने दोनों ने कभी नहीं बोला कि नहीं तुमको पढ़ना चाहिए, कि ये गॉड गिफ्ट है। और जब ये चली गई 11th-12th में, शी वेंट टू दिल्ली, और छोटी वाली वो जब 8th में आ गई तब, तो उसके ऊपर अचानक से अपने आप वो हुआ कि नाउ आई हैव टू स्टडी, एंड शी इम्प्रूव्ड सो मच, अपने आप पढ़ा, मैं उसके पीछे कभी नहीं पढ़ी, एंड शी वाज आल्सो द टॉपर लाइक हर सिस्टर। लेकिन एक डिफरेंस अभी भी बता दूं, उतना नंबर कभी नहीं लाई जितने लाई होगी, ठीक है, लेकिन इसके कारण उसके मन में एक आयोटा भी कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने मुझे कभी सुनी नहीं। दूसरी चीज क्या है कि करियर वाइज जो सबसे बड़ी चीज हम आपको बता सकते हैं अपने बच्चों के लिए, इनमें वो क्वालिटी है जो सब आप मांग रहे हो। और सबसे बढ़िया जो जिनके लिए मैंने ताली बजवाई थी, दे आर हैप्पी, बिकॉज दे आर हैप्पी, दे आर सक्सेसफुल ऑल्सो इन व्हाटएवर दे आर डूइंग। तो वो छोटी वाली ने तो बहुत कहानियां की है, अगर आपको पूरी कहानी बताए तो कभी बोली मुझे फिजिक्स पढ़ना है, फिर कभी बोली नहीं पढ़ना फिजिक्स, हम डिबेट अच्छी करते हैं, हमको लॉ करना है, लॉ करने गई तो बोली हम इस साल फुटबॉल खेलेंगे, अगले साल थिएटर किया उसने, प्रोफेशनल थिएटर, नाटक नहीं होते जाने स्टेज पे, तो उसका जब मूड होता है जब चेंज करती रहती है। अभी भी वो कहती है कि मुझे कैरियर पे 50% ध्यान देना, 50% मुझे म्यूजिक सीखना है, मुझे पेंटिंग करनी है, करती है। लेकिन जो काम करती है बहुत बढ़िया काम करती है। जितने जितने लोग गूगल करते हो ना, जाके गूगल करना, सिद्धिया सेनानी अलग से और सिमरन सेनानी अलग से, दोनों की इंडिपेंडेंट प्रोफाइल है और अपने जीवन में बहुत बढ़िया काम है। सबसे बड़ी चीज हमारे लिए सेटिस्फाइंग है, दे आर हैप्पी। इससे बड़ा सक्सेस का मेरे लिए कोई पैरामीटर है ही नहीं। आप कहां पढ़े, कितना कमा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चा खुश है, ये बताओ। बच्चा खुश वो होता है जिसके अपर ब्रेन को डेवलप करने में आपने सबसे ज्यादा मदद की है, क्योंकि अपर ब्रेन में ही ये सारी विजडम है, मोरालिटी है, एथिक्स है, चैलेंजेस को फेस करने है, डरना नहीं है, ये ऊपर होता है, ठीक है। और ये डेवलप होता है जब आप बच्चे को जज नहीं करते हैं, टोकते नहीं हैं, अपनी फिलॉसफी उसके ऊपर नहीं थोपते हैं। मेरे तो दोनों बच्चे इंजीनियर नहीं बने यार, मैं तो बिट्स प्लानिंग से इंजीनियर था यार, कभी जीवन में उनसे नहीं कहा तुम इंजीनियरिंग करो यार, नेवर। ही इज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, वो अलग है, तुम अलग हो। माँ बाप का रोल प्यार, मोहब्बत, सिक्योरिटी, पानी, खाद देना है, ये बताना नहीं कि तुमको क्या करना है। फिर आप नेचर पे तो बिलीव ही नहीं कर रहे हो, आप सारा नर्चर पे बिलीव कर रहे हो, राइट। बच्चे आपको नेचर भी तो हो सकता है यार, वो क्या करना चाहता है, जो वो करना चाहता है वो करेगा तो सबसे ज्यादा खुश रहेगा। अगर उसको हमने वो करवाया जो नहीं करना चाहता, भी आप दुखी हो, तो अगर आपको ये लगे कि हाँ मैं समझ पा रहा हूं आप दुखी हो, एक चीज ये है। दूसरी चीज है, क्या हो गया इतनी छोटी बात में तो तुम दुखी हो यार, दोनों में कितना फर्क है। तो उसके बाद फिर हमने, क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े थे तो उनका अपर ब्रेन डेवलप करना है, तो मैंने एंगेज किया। जैसे भाई साहब ने कहा, पूछा अच्छा बताओ यार तुम लोग क्यों आ गए यार, क्या हुआ होगा। फिर सर उनकी प्रैक्टिस, अच्छा नहीं एक मिनट सॉरी, उसके पहले मैंने बोला पूरी स्टोरी बताओ यार, कैसे हुआ, क्या हुआ, टॉस हुआ, ये हुआ। तो बताते बताते ना, पहले ये हुआ, हम लोगों ने पहले बैटिंग की, हम लोग नहीं पहले उन लोगों ने बैटिंग की, तो तब तक फिर भी लग रहा था हम कुछ बना पाएंगे। जब हम लोग बैटिंग करने गए तो बताते बताते थोड़ा उनका इमोशनल जो दुख था कम हो चुका था। फिर हमने उनसे पूछा कि तुम बताओ यार इसके पीछे क्या हो सकता है। तो बताया यार कि उनकी प्रैक्टिस ज्यादा है, वो खेलते जा रहे हैं, हम लोगों को 15 दिन से प्रैक्टिस की थी। मैंने तुमको कैसे पता वो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो बोला हमने पूछा, एक जन ने सेंचुरी बनाई, उससे पूछा तो उसने बताया मैं 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो लड़के ने, इंदौर के लड़के ने सेंचुरी मारी, उसने बताया मैं 5 साल से डेली 1 घंटा क्रिकेट खेलता हूँ मैडम। अगेन इनपुट फॉर यू, चैंपियन बनना इतना आसान नहीं है। वो बच्चा 5 साल से डेली 1 से 2 घंटा क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो उनको समझ में आया यार। तो मैंने कहा बताओ यार इससे क्या लर्निंग है। लर्निंग ये है कि सर अगर हमको इंदौर से मैच लेना है तो साल भर प्रैक्टिस करेंगे हम, तब हो सकता है कि हम उनके टक्कर के हो पाए। तो उन्होंने सीखा ना कुछ, आपने उनको इंगेज किया, उनकी
हार में जो बुरा फील कर रहे थे उससे पहले धीरे से उनको बाहर लाए, फिर उनके माइंड को आपने एक्टिवेट किया कि वो उससे कुछ सीखे, उस घटना से कुछ प्रोडक्टिव सीखे जिसको कि अगले आगे जीवन में यूज कर सके। एक मूविंग वाला भी मैं हमेशा बताता हूँ, अपने ऊपर भी अजमाना। मान लो आप किसी कारण से बहुत दुखी हो, तो उठ के तेज तेज चलना चालू कर देना है, और कोई ज्यादा होशियार है तो गाना लगा के डांस करने लगना, भागने लगना, स्विमिंग करने लगना, कूदने लगना। ये बताओ कोई आदमी कितना भी दुखी हो, अगर चलने फिरने लगे, कूदने लगे तो क्या होगा? एकदम माइंड चेंज हो जाएगा। डांस करते हुए कोई आदमी दुखी हो सकता है क्या? ऐसा कोई देखा है क्या? तो रिग्रेस बढ़िया डांस कर रहा हो, कूदने फाड़ने वाला, उसके बाद उसका मुंह लटका हुआ हो। तो जब भी आपका बच्चा या आप, मैं तो इसको सबके लिए कहता हूँ, अंडर इन्फ्लुएंस, अगर लोअर ब्रेन उसका चल रहा है, तो गुस्सा है, उसको हिंसा चढ़ रही है, नाराज हो रहा है, ये कर रहा है, तो आप कोशिश करके उससे कुछ फिजिकल एक्टिविटी करा दें। मतलब ये भी एक ट्रिक है, जैसे हक करना, अच्छे एक्सप्रेशन लाना, है ना, फील करना, उसको कहना पूरी कहानी बताओ क्या हुआ। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म में कई बार ये भी काम करता है कि भैया चलो वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करना चाहूँ, चलो वॉक करते जा रहे, या कोई फिजिकल एक्टिविटी करने लगे, साइकिलिंग करने लगे, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में ही बच्चा अपने लोअर ब्रेन या राइट ब्रेन से आप फिर एंगेज करो यार, उससे बात करो, उससे डायलॉग करो, उसको क्वेश्चन करो, उससे प्रश्न पूछो, अपना व्यू दो, ये मेरा विचार है, ये मेरे जीवन का अनुभव है। ये कहना और ये कहना कि हम तुम्हारे बाप हैं, तुमसे पहले आए धरती में, हमें पता है सही क्या है, तुम बताओगे हमको क्या सही है। देखो देखो किसके दिमाग में चल रहा है, कौन ऐसे बात करता है? बहुत सारे बाप ऐसे बात करते हैं, और माएँ भी। उनको लगता है कि धरती में पहले आए हैं तो हमारे पास लाइसेंस है, और हम इतने ज्ञानी हैं कि हर स्थिति के लिए मुझे पता है क्या करना चाहिए। तो ये जितने ज्ञानवान लोग यहाँ बैठे हो ना, इस टाइप के ज्ञान को आज यहाँ त्याग के जाओ, सही है कि नहीं? ये कोई गारंटी है क्या जो पहले यहाँ आया उसको वो जाना चाहता है? अभी सिंधिया ने क्या बनाया? जमाना बदल गया, या टेक्नोलॉजी बदल गई, तरीके बदल गए। आपके जमाने में इंटरनेट था क्या? आज है। अब उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपको बच्चा बताएगा। हम बहुत सारी चीजें अपने बच्चे से सीख सकते हैं। क्या सर, बच्चे की सुनते ही जमाना बदल गया, तो बच्चे बोलते हैं कि अच्छा आपने तो इतना लेट 2 मिनट सीखा, मुझे अभी सिखा दो। 11 ईयर में 2 व्हीलर्स। अच्छा चलो, एक यहाँ पर एक अब उल्टा हुआ है कि ये 2-3 दिन गुत्ता गुत्ती चली है कि नहीं, बात नहीं है, ये है वो है, बट आई वाज फर्म कि नहीं, पहले देखो ये क्या यूज करेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, पुराना कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़े। फिर धीरे धीरे वो भी समझ गए कि अब होने वाला नहीं है, तो इसी में फिर उन्होंने आइडिया ढूंढा कि इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको वैसे कर लेते हैं। बेसिकली वो लोग चाह रहे थे कि मेरे रूम में भी सब नया लगे, क्योंकि दीदी के रूम में सब नया लग रहा है, तो मेरे रूम में भी सब नया लगे। उन्होंने बोला जो पुराना फर्नीचर है वो भी ठीक है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ जिद है ना कि मेरा मन है भाई मुझे नया लाना है, और बहुत सोचे समझी जिद थी वो उधर खड़ी भी है, उससे आप भूल भी सकते हैं कि भाई हो सकता है पापा मान जाए, हो सकता है हमको नई चीज मिल जाए। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि यार तुम लोग को पैसे की कदर नहीं है, ये बोल सकते थे तुम लोगों को पैसे की कदर नहीं है, बट ही नोस नो बोथ माय किड्स वैल्यू मनी। ये बात नहीं है, ये जो जिद कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि इनको पैसे की कदर नहीं है। ये भी नहीं बोला कि तुम लोग क्या जब भी देखो जिद करने लगते हो। बोला भाई ये देखो ये फर्नीचर है, दिस कैन इजीली गो टू द न्यू हाउस, ये तो नए घर में जा रहा है, अब आप लोग बताओ इसको क्या करना है। फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि नहीं अगर वो ड्रॉवर है तो मुझे उसको ऊपर लगा के कुछ अलग कर देना है। देन अब देखो ना यार बच्चे, मतलब ऐसा भी हुआ है कि मैं कोई चीज इनके यहाँ जमवा के आया हूँ और अगले दिन पहुंचा तो उन्होंने बाहर निकाल दिया, टू मेक मी रियलाइज कि नहीं ये तो मेरे में आएगा ही नहीं, मैं नहीं लगने वाली है। और माँ बाप में से कौन सबसे पहले ब्लैकमेल के सामने झुकता है? क्योंकि वो क्वालिटी टाइम देते नहीं, तो कहते चलो मान लो यार,
तो भैया टाइम लेना है। बच्चा पूछ रहा था पहली स्लाइड में, मुझे कॉन्फिडेंट, हैप्पी, होशियार सब बनाना है, तो भैया कुछ करना पड़ेगा अभी, ये हवा में नहीं हो जाएगा। यू हैव टू स्पेंड टाइम। गलत बात बच्चे की नहीं माननी, so that he can make a distinction what is right and wrong, appropriate is not appropriate क्या है, ये समझ उसको डेवलप करनी है, क्योंकि जीवन में भी ये भेद कर पाए कि मुझसे कौन सही डिमांड कर रहा है, कौन गलत डिमांड कर रहा है। यस, जैसे बच्चे भी समझते हैं कि ज्यादा जब भीड़ रहती है ना, माँ जिद करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। वो अपर ब्रेन यूज कर रहा है ना, या देखो अपर ब्रेन यूज करके एग्जांपल देता है। मेरे दोस्त के पास है, मुझे देखो क्लास में इंफीरियरिटी लगता है, वो कितनी अच्छी ड्रेस पहन के पार्टी में आई थी। ये अपर ब्रेन विद्या भी खूब यूज करती है। तो बच्चा सब, तो किसी भी अपर ब्रेन की जो इनअप्रोप्रिएट बात है उसको एज ए पेरेंट, एज ए सीनियर, एज ए गार्जियन हमको मानना, हमको लेकिन नहीं मानने का मतलब न लड़ाई करना है, न झगड़ा करना है, न मारना है, न जज करना है, न बेइज्जती करना है, न ह्यूमिलिएट करना है उसको। समझ गया? रिगरसली मानेंगे नहीं, लेकिन झगड़ा भी नहीं करेंगे। सर ये जो ये बात चल रही है, ये एक सिर्फ उदाहरण है कि गाड़ी की ऐसी रोज समस्याएं आती है। बिल्कुल रोज। तो एक थोड़ा सा मेरे यहाँ भी ये प्रॉब्लम है कि मेरा भी बच्चा बड़ा हो गया, मैं रोज एक्टिवा से उसको उसके स्टैंड तक छोड़ने जाता हूँ, बोलता है मुझे चलाना है। अब मैं आपको एक बात बताऊं ना, जो रोज की जो, जैसे सर ने बोला कि संविधान भी किसी चीज के लिए रोकता है, या फिर जो लोअर ब्रेन जो कहता है उसको नहीं मानना है, कई चीजें नहीं मानने की, तो उसके लिए एक चीज है कि उसको हमको पहले से समझ करके हम क्या करते हैं घर में डिस्कस। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, श्री कृष्ण फेज 3 में एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, मूसाखेड़ी चौराहे से आ रहा था, ब्रिज के आगे आकर, और जो वो ब्रिज उतरते डिवाइडर में टकराया था। अब वो पूरी घटना मैंने पूरी उसको जानकारी में ली, हम लोग हालांकि उसको देखने पे गए थे, जानकारी आई तो उसको पूरी घर में बताया कि बेटा ऐसा ऐसा हुआ, और वो बच्चे आ रहे थे। तो मेरे जो बच्चे का जो जवाब था वो आप सुन के हैरान होंगे, माँ बाप की तो गलती है, गाड़ी क्यों दी। अब क्या हुआ, मेरी समस्या खत्म हो गई, अब वो मेरे से गाड़ी नहीं मांगता है। तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जो ये घटनाएं दिन रात होती है, जो गलत है, हम चाहते हैं कि ये हमारा बच्चा नहीं करे, इन घटनाओं को हमारे घर में चर्चा करें। हम लोग चर्चा नहीं करते हैं बच्चों के साथ। हम चर्चा क्या करते हैं, रात को बात है, क्या हुआ, क्या स्कूल में पढ़ा। अरे जो रोज की बातें हैं, जो हम सुनते हैं, देखते हैं, वो उनके साथ में चर्चा करें। जो गलत है वो चर्चा करें, रोकना इलाज नहीं है। आप ये भी जो आपने कहा ना, स्कूल में क्या पढ़ाई हो जाएगा, मुझे आज स्कूल में क्या हुआ, अब उसका आप यू एनकरेजिंग टू टेल द स्टोरी। सुबह ये हुआ, फिर मैं दोस्तों के साथ खेला, और इस पूरे घटनाक्रम के सुनते वक्त हम बड़े पेशेंस से सुन रहे हैं। अपनी लेफ्ट ब्रेन की होशियारी अभी, जब उसको लगा कि मेरी पूरी बात सुन ली, समझ ली, कर रहे हैं कि इसको अपने जीवन में उतारिए, ग्रुप बनाइए और फॉलो करिए। और अगर कहीं चैलेंज आए तो आप सिद्दीकी सर से बात करिए। देखिए हम लोगों ने इस स्कूल में भी ये जितनी हम बात कर रहे हैं ना, ये हमारी फिलॉसफी, हम इसमें बिलीव करते हैं। क्यों हम कह रहे हैं कम बच्चे हो स्कूल में, क्यों मैं भीड़ लोगों को ध्यान दे सकता है यार, वो क्या फील कर रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। कम बच्चे होंगे तो टीचर बच्चे को समझ पाएगा कि उसकी पर्टिकुलर उस दिन वो क्या फील कर रहा है, उससे उस तरीके से बात करता है। ज्यादा बच्चे में संभव ही नहीं, ज्यादा बच्चे में वन वे कम्युनिकेशन होगी बस, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग भी, हमारी पूरी जो टोटल सोच है, हमको खुश बच्चे बनाना है। हम ये नहीं बना रहे सबको हमको आईआईटी और चैंपियन बनाना है, वो संभव ही नहीं है। जो ऐसा कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो कर नहीं सकता। दुनिया का कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं है कि जो कह देगा मेरे यहाँ हर बच्चा आईआईटी हो सकता है क्या ऐसा। तो ऐसी बात बोलने से क्या फायदा। लेकिन हम ये जरूर प्रयास कर सकते हैं कि हमारा हर बच्चा खुश हो, उसके चारों ब्रेन डेवलप हो, उसका जो नेचर है हम उसी को खाद पानी दें, उसको सपोर्ट करें, उसकी इमोशंस का, उसके बिहेवियर का, उसकी पर्सनालिटी का ख्याल करें, उसको रिस्पेक्ट करें। जब आप उससे एंगेज करते हो, बात करते हो, डांटते नहीं हो, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, एज ए इंडिविजुअल उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसके दिमाग की, उसकी सोच की, उसकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो फिर वो भी यही सीखेगा, राइट।
थैंक यू वेरी मच। शेयर किया तो दैट इज जस्ट एन एग्जांपल, ऑल ऑफ यू गो थ्रू सच सिचुएशंस। तो जिन पेरेंट्स ने भी आज शेयर किया उनके लिए जरूर क्लैप करिए। इट टेक्स लॉट ऑफ करेज, ऐसी पूरी उसमें शेयर करना, इसमें बहुत हिम्मत लगती है, और आप ये शेयर कर पाए तभी तो आप सीख पाए। और बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। Shruti ma'am and Sidhya ma'am, thank you. Sincere thanks to the heads of the various departments who handled the event